in section 43 CB. So whatever will be the contradiction in these two ICDS third and fourth, वो already all are backed by the section 43 CB, and जो internal बातें हैं वो आपकी ICDS 3 and 4 में है. Then on the same pattern, we will study foreign ICDS on foreign exchange. Any gain or loss being computed in accordance with the ICDS arising on account of any change in foreign exchange rate shall be treated as income or loss. Before this ICDS and before this section, what used to happen, that SSC used to claim loss on foreign exchange. Suppose there are some debtor in foreign country, and I'll explain through whiteboard. ICDS 6 is there for foreign exchange treatment. Before this ICDS and before the introduction of this particular section, what used to happen, that suppose there is foreign debtor. Value of foreign debtor was 1,000 rupees. Foreign debtor means the payment from foreign debtor will receive in foreign currency. Foreign currency. Suppose foreign currency rate is 70 rupees when you make the transaction. And it was of $1,000, means 70,000. On November 2019, you made some sale to foreign debtor, and at that time the rate was 70 rupees. It means 70,000 rupees is your debtor value. However, at the end of the year, at the end of the year, that is on 31st March 2020, rupees fall and it become 85. So difference of 85 rupees, 85,000 and 70,000 rupees. SSC used to claim as foreign exchange loss. Foreign exchange loss. So, like debtor, sometime SSC claimed that on machinery also I took foreign loan, and मशीनरी का जो कॉस्ट है उसके लिए जो फॉरेन लोन लिया है उसकी भी वैल्यू बढ़ गई है, ज्यादा पेमेंट मेरे को करना पड़ेगा, देन उसके लिए भी वो लॉस क्लेम करता था. तो देयर वाज नॉट सम स्टैंडर्ड टू क्लेम दिस फॉरेन लॉस. फॉरेन लॉस. तो अब इसने सेक्शन ने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि वॉट एवर आईसीडीएस विल टेल यू, आप उस आईसीडीएस के अकॉर्डिंग आप इस लॉस को क्लेम करेंगे. तो नाउ व्हाट इट्स सेइंग एग्जैक्टली,
It's saying that any gain or loss being computed in according with ICDS. अब ICDS में आपको I'm telling you that ICDS की आपको ये वाला particular loss मिल जाएगा, ये वाला particular loss नहीं मिलेगा. Arising on account of any change in foreign exchange rate shall be treated as income or loss. Such gain or loss shall arise in respect of foreign currency transaction, including those relating to कौन कौन से इसने कवर कर लिया. मॉनेटरी आइटम पे आप मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी आइटम पे आपका कुछ फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस आ रहा हो, आपके कोई फॉरेन ऑपरेशन चल रहे हो, या आपके कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हो, या आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शनल रिजर्व इज देयर. तो इन सब पे कवर करेंगे एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल in ICDS 6. So this 43AA is just saying that whatever forex loss you will compute as per ICDS, that will be only allowable. अब आप अपनी मर्जी से हर की मशीन पे लॉस हो गया उस पे भी आप क्लेम करेंगे, डेटर पे हो गया तो उस पे भी आप क्लेम करेंगे. आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. ICDS आपको अलाउ करेगा तो आप करेंगे इसको. ரிமோட் எடுத்து போய் காமிச்சிட்டு வாங்கிட்டு வா. அதை எடுத்து பாக்கெட்ல வச்சுக்கோங்க. So what ICDS 6 says, 50 ரூபா தான் கொடுத்தேன். 50 ரூபா தான். initial recognition. Foreign currency transaction shall be recorded on initial recognition in the reporting currency by applying the foreign currency amount, the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of the transaction. तो what about initial recognition? जब आप पहली बार बुक करने लगे अपने डेटर को, या आपने कोई मशीनरी का लोन ले रखा है फॉरेन करेंसी में उसको बुक करने लगे हो, तो इनिशियल रिकॉग्निशन तो सबकी उसी रेट पे होगी जिस डेट पे आपने वो ट्रांजेक्शन की है. A foreign currency transaction shall be recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of the transaction. On the date of the transaction, whatever will be the rate there, on that date you will apply that particular rate. However, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए कि अगर आपकी ज्यादा पूरे मंथ में ज्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं तो इट सेज दैट एन एवरेज रेट फॉर ए वीक और ए मंथ दैट अप्रोक्सीमेट टू एक्चुअल रेट. आप एक एवरेज रेट भी ले सकते हैं, जो आपको ड्यूरिंग द वीक चल रहा हो और ड्यूरिंग द मंथ चल रहे हो, और वो लेकिन रेट एवरेज अगर आप ले रहे हो तो वो अप्रोक्सीमेट टू योर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए. भाई आपका डेली बेसिस पे फॉरेन में ट्रांजेक्शन होती है और यू डोंट वांट टू टेक रेट डेली, तो वो आपको कहता है कि अगर आप ज्यादा रेट चेंज नहीं हो रहा है, अप्रोक्सीमेट ही रहता है, तो आप एक सिंगल रेट भी ले लो, जो एक वीक का एवरेज रेट निकाल लो या मंथ का एवरेज रेट निकाल लो. बाय अप्लाइंग दैट रेट आप ट्रांजेक्शन वाले दिन उसका इनिशियल रिकॉग्निशन कर सकते हो. चाहे आपका मंथ में 25 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हुई है, लेकिन आप 25 तारीख का रेट ना लेके उस मंथ का जो एवरेज आपने निकाला हुआ है उस मंथ के एवरेज का रेट लेकर आप अपना डेटर या अपना फॉरेन का कोई क्रेडिटर है या आपने कोई लोन लिया हुआ है मशीनरी के लिए, तो उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो. तो दैट विल बी इनिशियल रिकॉग्निशन. तो इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ. अब प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट कब आएगा आपका? जब आपका या तो रुपीज फॉल हो गया है तो आपको लॉस हो जाएगा, रुपीज बढ़ गया है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा. तो हाउ यू विल converge and book your foreign currency loss at the last day of the each previous year. Foreign currency monetary items shall be converted into reporting currency by applying the closing rate. तो monetary item I think आप लोगों ने अकाउंट्स में you have already studied in the accounts. Monetary item are those item जिसका ultimate payment आपको जो है वो you will receive in the money. Monetary item are money held and assets to be received or liability to be paid in fixed or determinate amounts of money. So you are clear कि मेरे को 100 रुपीज मिलने हैं डेटर के अगेंस्ट तो 100 ही मिलने हैं. क्रेडिटर है, जैसे क्रेडिटर को आपको लगा 500 रुपीज के क्रेडिटर, इट मींस 500 रुपीज ही आपके पास से जाएंगे. कैश, रिसीवेबल्स, पेबल्स आर एग्जांपल ऑफ मॉनेटरी आइटम्स. लेकिन लाइक इन्वेंट्री है, इफ यू हैव सम इन्वेंट्री, सो इन्वेंट्री आपको इन्वेंट्री के अगेंस्ट में आपको 500 रुपए मिल रहे हैं या 5000 रुपए मिल रहे हैं, यू आर नॉट श्योर. आपको वो डिटर्मिनेंट अमाउंट नहीं आपको पता है
कि इतनी अमाउंट ही मिलनी है, तो दैट इज नॉट मॉनेटरी आइटम। तो उसने कहा कि मॉनेटरी आइटम के केस में हम कुछ और करने लगे हैं और नॉन मॉनेटरी आइटम के केस में हम कुछ और कर लेंगे। तो मॉनेटरी आइटम के केस में फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम शैल बी कन्वर्टेड इनटू रिपोर्टिंग करेंसी बाय अप्लाइंग क्लोजिंग रेट। कह रहा है मॉनेटरी आइटम के केस में तो आप ले लेना लॉस, आप क्लोजिंग रेट लगा लो। बिकॉज क्यों लगा लो? क्योंकि हम यहाँ पे जैसे आप 31 मार्च में आए, यू आर श्योर कि भाई मेरा रेट जो डॉलर का है वो बढ़ गया है, डॉलर हैज इंक्रीज, अब मेरे को जो बढ़े हुए प्राइस से है वही पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर वो डेटर का केस है तो डेटर के केस में डॉलर सॉरी, ये आई थिंक एग्जांपल मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। सॉरी, इस एग्जांपल में इट इज नॉट पर्टिकुलरली डेटर, इट इज अ क्रेडिटर। So earlier creditor was, when I initially booked creditor, it was of rupees 70,000. That time dollar rate was 70, but on 31st March on closing date it was of 85 rupees. So instead of 70,000 I have to make payment of rupees 85,000। 85,000 की क्योंकि मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी तो 15,000 रुपए का मेरे को लॉस हो जाएगा। सो इन केस ऑफ मॉनेटरी आइटम, in case of monetary item, the government is accepting that it's okay that in case of creditor and debtor I am okay that कि आपको closing में जो rate चल रहा है still you have not made the payment but you are sure कि आपका because डॉलर बढ़ गया है तो आपको ज्यादा रेट से ही पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप ये लॉस मेरे से क्लेम कर सकते हो। तो what in case of foreign currency monetary item shall be converted into reporting currency by applying the closing rate. In case of non-monetary item in foreign currency shall be converted into reporting currency by using the exchange rate at the date of the transaction. फॉरेन करेंसी के केस में आप जब भी वैल्यूएशन भी करेंगे तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन भी करेंगे, यानी कि आप इसमें लॉस नहीं निकाल सकते हो। नॉन मॉनेटरी आइटम इन फॉरेन करेंसी शैल बी कन्वर्टेड इनटू रिपोर्टिंग करेंसी बाय यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। इट मींस जिस डेट पे आपको ट्रांजैक्शन करी थी उस डेट का ही रेट आप लेते रहेंगे नॉन मॉनेटरी के केस में, अनटिल अनलेस आपको लास्ट में जब फिक्स एसेट्स सेल कर रहे हो उस टाइम पे कोई एक्चुअल में लॉस नहीं हो जाता, तब तक हम आपको ये लॉस नहीं लेने देंगे। सो आई एक्सप्लेन इट थ्रू what this ICDS case is saying. ICDS 6 says that if you have monetary item, so initial तो आप उसको ट्रांजेक्शन की डेट से बुक करेंगे जो भी प्राइस चल रहा है आपका, लाइक इन हमारे एग्जांपल में 70 रुपीज चल रहा था। एंड जब आपका ईयर एंड आएगा देन यू विल टेक ईयर एंड प्राइस, इट मींस 85 रुपीज प्राइस, और जो भी आपका लॉस आएगा यू कैन क्लेम फॉर एन एक्सचेंज लॉस। However, in case of non-monetary item will be of two type. One is inventory. Inventory के केस में we will do different treatment other than inventory. अगर आपकी कोई नॉन मॉनेटरी आइटम है, व्हाट इज नॉन मॉनेटरी आइटम? आपकी कोई मशीन है जिसके रिलेटेड आपने जो पेमेंट करनी है वो फॉरेन एक्सचेंज उसमें करनी है, या कोई भी ऐसी आइटम है जिसको आप सेल करेंगे तो यू आर नॉट श्योर कि मेरे को कितना पैसा मिलना है, दैट इज नॉट मॉनेटरी आइटम। अगर आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम है तो वो अगर 70 में आपने इनिशियल बुक कर रही है तो आप क्लोजिंग के टाइम पे भी उसे 70 पे बुक करेंगे और कोई भी उसका लॉस या प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। लॉस एंड प्रॉफिट किसका निकालेंगे? ओनली ऑफ मॉनेटरी आइटम, बिकॉज इन केस ऑफ मॉनेटरी आइटम यू आर श्योर दैट अब मेरी पॉकेट से जो है 85 रुपीज जाएंगे इंस्टेड ऑफ 70 रुपीज। In case of inventory, we have studied that inventory shall be valued cost
or NRV. Cost or NRV, whichever is lower. So in case of inventory, department is saying that if you are valuing your inventory on cost, then there is no need to claim foreign exchange gain or loss. However, if you are valuing your inventory at NRV, it means your cost was 80 rupees. However, your NRV is 50 rupees. That's why you valued your inventory at rupees 50 rupees. Then in that case, you will convert your 50 rupees by taking the closing rate. Otherwise, you will take on original rate only. If you are valuing your inventory on, so if there is monetary assets, then always you will value it at closing rate. However, in case of non-monetary, if non-monetary assets is other than inventory, then always valued on your initial price, that is 70 rupees. However, if your inventory is valued on NRV, then you will take closing rate. इट मीन्स अगर आप एनआरवी पे अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हो तो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस को आप हमारे से क्लेम कर सकते हो. अगर आप एनआरवी पे नहीं कर रहे हो, आप कॉस्ट पे कर रहे हो, देन आप फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस को हमारे से क्लेम नहीं कर सकते. क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? क्लियर सर. क्लियर है. So C point is non-monetary item being inventory which is carried at net realizable value. Inventory is non-monetary item. So in case of non-monetary item, we always book for it as on transaction day का जो हमारा रेट चल रहा होता है उस डे पे करते हैं. बट इस केस में, इन्वेंट्री के केस में क्या देखोगे आप, अगर इन्वेंट्री आपकी रिलाइजेबल वैल्यू पे आपने वैल्यूड करी है, देन इन दैट केस carried at net realizable value denominated in foreign currency shall be reported using the exchange rate that existed when such value was determined. तो आप उस लॉस को भी बुक कर लेंगे, फॉरेन एक्सचेंज लॉस को भी बुक कर लेंगे, और जो क्लोजिंग रेट आपका आ रहा होगा, इवन क्लोजिंग रेट नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, इवन जिस डेट की आपने एनआरवी ली है उस डेट में जो फॉरेक्स का रेट आ रहा होगा, फॉरेक्स का रेट भी उसी डेट का लेंगे. Then there are some forward exchange contracts. What happens in these forward exchange contracts, that sometimes you took सब forward contracts कि कल को फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का अगर प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो यू वांट टू बी सेफ, तो आप सेफ होने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेते हैं कि मेरे को तो फॉरेक्स एक्सचेंज इस पर्टिकुलर डेट में इतने की ही मिलनी चाहिए, चाहे वो प्राइस ऊपर नीचे जितना मर्जी हो जाए. तो आप उसके लिए कुछ प्रीमियम पे करते हैं. तो व्हाट विल बी हैपन इन दिस ट्रांजेक्शन, एक तो आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा. देन सपोज आपने, हमारे वाले केस में 70 रुपीज वॉज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, और जब 31 मार्च तक आप आए तो उसका प्राइस 85 रुपीज हो गया था. और हमने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, सपोज करो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 80 रुपीज में, 80 रुपीज में कि मेरे को तो अगर जब भी मिलेगा तो 80 रुपीज में मिलेगा, तो आई नीड नॉट टू बुक एंटायर लॉस. मेरे को 85 रुपीज से लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है. आई विल बुक ओनली डिफरेंस ऑफ 80 एंड 70. तो हाउ आई विल बुक, it says that any premium or discount, सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो इसके लिए कुछ ना कुछ आपको प्रीमियम
or any premium or discount arising at the inception of foreign exchange contract shall be amortized as expenses or income over the life of the contract. तो आपका जितने भी पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होगा, in that period आप that premium amount you will apportion that premium amount in that particular period. और जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, हाउ यू विल कैलकुलेट एक्सचेंज डिफरेंस ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम or as expenses in the previous year in which the exchange rate change. Any profit or loss arising on cancellation or renewal shall be recognized as income as expenses for the previous year. So उस पर्टिकुलर केस में आप जैसे जैसे नॉर्मल आप लॉस अपना कैलकुलेट कर रहे थे, वैसे नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करोगे, और जिस प्रीवियस ईयर में आपको लॉस हो गया उस प्रीवियस ईयर में लॉस बुक करोगे. बस आपका लॉस का क्वांटम थोड़ा सा बुक हो जाएगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एग्रीड द प्राइस कि मेरे को फॉरेन एक्सचेंज का लॉस इतने में मिलना चाहिए. हाउएवर प्रीमियम डिस्काउंट और एक्सचेंज डिफरेंस, अगर आपका स्पेकुलेशन करने का यू आर डूइंग स्पेकुलेशन ओनली, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर बिजनेस पर्पस, तो कॉन्ट्रैक्ट दैट आर इंटेंडेड फॉर ट्रेडिंग or speculation purpose or that are entered into has for the foreign currency risk or firm commitment or highly probable forecast transaction shall be recognized at the time of the settlement. So I'll explain through one summary first, then we will come here. So what this ICDS is saying, that monetary item, non-monetary item, then we have forward contract. Forward contract means suppose you need to make payment in foreign currency. So sometimes to hedge that loss, you take forward contract. Has the business loss. But sometimes you speculate in this foreign currency transaction, और आप इस स्पेकुलेशन का जब आपको प्रॉफिट हो रहा होता है तब आप सेल कर देते हो. तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कर रहे हैं तो देन जब भी सेटलमेंट पे जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा देन ओनली वी विल अलाउ, क्योंकि आपका जेन्युइन प्रॉफिट लॉस नहीं है, यू आर डूइंग स्पेकुलेशन. और अगर आपने किसी बिजनेस पर्पस से ले रखा है देन जो उसका प्रीमियम आपने पे किया था, प्रीमियम तो जितना टाइम में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में आप डिवाइड कर लेना, और जो उसका लॉस आया वो आप ईयर बाय ईयर क्लोजिंग डेट पे जाके वैल्यू करेंगे. इफ यू आर इन लॉस तो आप उस लॉस को उसी साल में बुक कर लेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज लॉस. आप इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज लॉस को क्लेम कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी चीज पे क्लेम नहीं कर सकते. मॉनेटरी आइटम पे यू कैन ऑलवेज क्लेम. नॉन मॉनेटरी आइटम पे एज यू वैल्यू योर नॉन मॉनेटरी आइटम एट ट्रांजेक्शन वैल्यू ओनली, तो इस पे कभी आपका लॉस आएगा नहीं. देन अगर नॉन मॉनेटरी आइटम में आपकी इन्वेंट्री हुई, इफ नॉन मॉनेटरी आइटम कंटेन्स योर इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री को अगर आपने रिलाइजेबल वैल्यू पे कैलकुलेट किया है तो इस केस में आपका लॉस आ सकता है, बिकॉज उस केस में आप फॉरेन करेंसी का रेट भी आप जिस डेट पे आपने रिलाइजेबल वैल्यू ली है इन्वेंट्री की उस डेट में करेंगे. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप स्पेकुलेशन करते हैं, इफ यू आर डूइंग स्पेकुलेशन इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट then loss will not be allowed and it will be allowed at the time of settlement only. However अगर आपने जेन्युइन बिजनेस पर्पस के लिए ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसका जो भी आपने प्रीमियम वगैरह दिया था वो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में अमोर्टाइज कर लेंगे, और जो आपको लॉस ईयर बाय ईयर हो रहा है वो आपको अलाउ हो जाएगा. होप क्लियर है ये वाला सबको. अब जो वो मॉनिटरी आइटम वाला है उसमें जब रिसीव करेंगे तो मतलब वो प्रॉफिट में होगा उस टाइम तो वो रिलाइजेबल लॉस और प्रॉफिट ही हो गया. रिलाइजेबल लॉस और प्रॉफिट पे तो कभी गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन ही नहीं है, वो तो उस टाइम पे तो जितना होगा ही होगा. सपोज करो 85 तक आप पहुंच चुके थे, लेकिन जब क्रेडिटर को एक्चुअल में पेमेंट करने लगे उस टाइम पे 95 का रेट हो गया.
सर डेप्टर के केस में डेटर के केस में एक्चुअली मैंने एग्जांपल गलत ले लिया, डेटर के केस में तो हमें प्रॉफिट ही होगा ना ये, तो दिस विल बी आवर इनकम। ओके सर ओके जितना, हाँ जितना उधर हम क्रेडिटर में लॉस दिखा रहे हैं, तो ये जैसे जैसे लॉस, जितना जितना लॉस आ रहा था उतना उतना वो प्रॉफिट बनता चला जाएगा हमारा। यस सो दिस पर्टिकुलर आईसीडीएस इज नॉट सेइंग कि आपने लॉस दिखाना है, प्रॉफिट दिखाना है। दिस इज सेइंग कि हाउ यू विल वैल्यू। जहां पे इसने बोल दिया है कि आप ईयर एंड का रेट ले सकते हो, इट मींस इट इज अलाउइंग यू द लॉस और प्रॉफिट। लॉस और प्रॉफिट आपको उसी टाइम दिखाना है। जहां पे इसने बोला है कि नहीं आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ही चलना है, तो वो इट मींस कि सेटलमेंट पे जब भी कुछ होगा तो उस टाइम पे मिलेगा, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो हमारा क्या क्रक्स निकला कि मॉनेटरी आइटम पे हमें लॉस मिल जाएगा। अब मॉनेटरी आइटम सपोज इस तरह की भी हो सकती है। मॉनेटरी आइटम, आपने कोई लोन लिया है मशीनरी के लिए, अब लोन आपका चल रहा है डॉलर में, आपका लोन चल रहा है डॉलर में, तो डॉलर में आपको पता है कि लोन की पेमेंट तो मेरे को इतने डॉलर ही करनी है। इन दैट केस अगर लोन में भी हो गया, चाहे आपने कैपिटल एसेट्स के लिए लिया है, तो भी आपको लॉस मिल जाएगा, बिकॉज ये मॉनेटरी आइटम पे है आपका। अगर नॉन, सपोज करो आप मशीन कोई चीज सेल कर रहे थे, वो फॉरेन करेंसी में सेल करनी है आपको, या वो उसकी वैल्यू फॉरेन करेंसी में चल रही है, तो अगर वो नॉन मॉनेटरी है देन इट विल बी अलाउबल ओनली एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। मॉनेटरी आइटम की कुछ पेमेंट करनी है, उसको आपको ईयर बाय ईयर आपको लॉस और प्रॉफिट बुक करते चल रहा होगा, राइट। There is one specific ICDS left, specific जो specific section जिस पे दिया हुआ है, we take that that is section number yes 145 है. So this is also some specific situation. So except this, all other ICDS are general. You can read yourself. जितनी भी specific situation थी वो सब हम already cover कर चुके हैं. तो 145A I am covering. The valuation of inventory shall be made lower of actual cost or net realizable value. This is clear. And how you will value tax? You will include tax and securities listed securities होगी, then it will be valued lower of cost or net realizable value. Otherwise वो अपना cost पे चलती रहेगी. तो regarding this section there is a ICDS number 2. इसके अलावा जो ICDS रह जाएंगे, दैट ऑल आई एक्सप्लेन यू थ्रू समरी चार्ट, 1 या 2 पेज का समरी चार्ट नेक्स्ट क्लास में. एंड बिफोर दैट यू विल जस्ट गिव द रीडिंग टू ऑल द ICDS, बिकॉज अब सब जर्नल रह गए हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक चीजें जो थी वो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो व्हाट दिस इज सेइंग, inventory shall be valued at cost or net realizable value, whichever is lower. Net realizable value is estimate selling price in the ordinary course of business. आपका जो मार्केट वैल्यू है वो, और मार्केट वैल्यू में से आप एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ नेसेसरी टू मेक सेल, अपने सेलिंग एक्सपेंसेस, इफ यू विल डिडक्ट द सेलिंग एक्सपेंसेस, देन इट बिकम द नेट रिलाइजेबल वैल्यू. केवल जो मार्केट वैल्यू होता है वो नेट रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होता. मार्केट वैल्यू में से इफ यू डिडक्ट योर सेलिंग एक्सपेंसेस, इट विल बिकम नेट रिलाइजेबल वैल्यू. तो आपको नेट रिलाइजेबल वैल्यू, इफ नेट रिलाइजेबल वैल्यू लोअर देन कॉस्ट है, देन यू विल वैल्यू ऑन नेट रिलाइजेबल वैल्यू. अगर कॉस्ट लोअर है तो आप उस पर वैल्यू करेंगे, वॉट एवर इज द लोअर वैल्यू, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेन पर्पस रहता है कि इट विल अलाउ ओनली द लोअर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. Cost of inventory shall comprise of all cost of purchase, cost of services, cost of conversion. Other, these all are general. So whatever cost is directly related to the inventory, you will capitalize that.
कॉस्ट फॉर्मूला आईसीडीएस में आपको पता होना चाहिए. ICDS allow you first in first out method. ICDS allowed you weighted average method, but it also says that if you can specifically identify your inventory, आपकी आप अपनी कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट अगर आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन वी विल प्रिफर दैट मेथड. इधर यू अप्लाई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, otherwise first in first out method or weighted average method is also allowed. So 3 methods are allowable under the ICDS. कि आपका specific, if in question examiner asks that the particular assessee valued its stock at LIFO method, then you will reject that method and you will calculate by applying first on first out method or weighted average method or specific identification method, and as per that method whatever value will be there, it will be value of inventory of that particular assessee. अगर आप चेंज कर रहे हैं पूरे आईसीडीएस में, अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो आपको ये प्रूव करना होता है कि देयर इज रीजनेबल कॉज. रीजनेबल कॉज में अपने आप को सर्कमस्टेंसेस बताने हैं एज पर योर सर्कमस्टेंसेस एंड एज पर योर फैक्ट्स. इफ देयर इज रीजनेबल कॉज देन यू कैन चेंज योर इन्वेंटरी मेथड. सो आई थिंक ये ऑल स्पेसिफिक टाइप ऑफ आईसीडीएस वी हैव कवर्ड. सो नेक्स्ट क्लास में आई विल मेक अ समरी ऑफ 1 or 2 पेज. तो बाकी जो आईसीडीएस रह गए हैं उसको मैं आई विल एक्सप्लेन थ्रू द समरी. राइट सर. अभी इसमें अभी तक डाउट तो नहीं है ना किसी को अभी तक? सर एक क्वेश्चन पूछना था, वो रीजनेबल अनसर्टेनिटी होते हैं वो कैसे प्रूव करता है डिपार्टमेंट? हाँ, ये रीजनेबल अनसर्टेनिटी का मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ. देखो, सो आप एक बार गो थ्रू करेंगे इन क्लैरिफिकेशन को भी अपने आप, तो सारी चीजों के आंसर आपको इन क्लैरिफिकेशन से मिल जाएंगे. बिकॉज गवर्नमेंट हैज कवर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस. So this was the question before the government. The condition of reasonable certainty of ultimate collection is not laid for the taxation of interest, royalty, and dividend. Whether the tax, sorry, that is. Give me 1 minute. I just bill discounting. This is the question. Question number 9. ICDS first provide that an accounting policy shall not be changed without reasonable cause. The term reasonable cause is not defined. What shall constitute reasonable cause? So government answer was, under that reasonable cause is an existing concept. As per them, ये existing concept है and has evolved well over a period of time, conferring desired flexibility to the taxpayer in the deserved cases. So अब deserved cases मतलब case law में decide हुआ होगा कि reasonable cause is as per your facts or as per circumstances, if you are able to prove कि ये reasonable cause है सर, इसलिए ये मेरे को presentation में या फिर मेरा time बचाएगी या मेरी cost save करेगी, these type of reasonable cause I have, तो you can change your policy or you can change your method of इन्वेंट्री वैल्यूएशन की. अर्लियर आप अभी स्पेसिफिक मेथड पे कर रहे थे, देन आपको लगा कि ये कॉम्प्लिकेशन इतना इन्वेंट्री में बढ़ रहा है कि मैं ये स्पेसिफिक में तो मेरा टाइम बहुत लग रहा है, तो देन यू कैन मूव टू फीफो एज वेल. लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यू हैव रीजनेबल कॉज फॉर दैट.
right? It's about reasonable certainty. I think he spoke about reasonable certainty. Reasonable certainty where जो क्वेश्चन था ना इसका, वो रीजनेबल सर्टेनिटी के बारे में था, अनसर्टेनिटी, रीजनेबल सर्टेनिटी। कहाँ पर? जो सर वो क्वेश्चन मतलब सेम ही मतलब हुआ ना उसका, तो शायद फिर ना वो अलग रीजनेबल सर्टेनिटी है, शायद वो स्टॉक वगैरह के बारे में, क्या है वो रीजनेबल सर्टेनिटी सर, वो शायद उसके बारे में कुछ सर्कुलर इशू क्लैरिफिकेशन दिया था उसमें, तो सर्कुलर इशू करके ना रीजनेबल सर्टेनिटी, मतलब कोई रेवेन्यू हम बुक ना करें उसके लिए कोई रीजनेबल सर्टेनिटी है हमारे पास। ओके आप यू आर आस्किंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवेन्यू। ओके सो रिवेन्यू, हाँ रिवेन्यू के केस में तो आपको अगेन वो हाँ दैट इज डिफरेंट वर्ड कि इफ यू हैव रीजनेबल सर्टेनिटी देन ओनली यू विल बुक योर रिवेन्यू। रीजनेबल सर्टेनिटी मींस कि आपको अल्टीमेट कलेक्शन आपको लग रहा है, जैसे आपको आपने बोल दिया है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द सर्कुलर, इफ देयर इज सर्कुलर आई विल सी, लेकिन वैसे इन जनरल पार्लेंस इट मींस कि अगर आपको लग रहा है कि क्वालिटी मेरी खराब चली गई है या मेरा गुड्स खराब चला गया है या उसका नेचर उस तरह का बाद में पता लगा या डिफॉल्टर कोई निकला, वो पार्टी है ही नहीं है, तो अगर आपको इस केस में ऐसा स्टार्टिंग से ही लग रहा है तो देन यू विल नॉट बुक योर रिवेन्यू। सर प्रूफ कैसे करेंगे उस इनकम टैक्स को? बाकी डॉक्यूमेंट से ही करोगे आप प्रूव डिपार्टमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब आप भी जब खुद असर्टेन कर रहे हो तो ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट ही असर्टेन कर रहे होंगे ना, देन आप डिपार्टमेंट को भी उसी बेस पे। भाई आप ऐसा तो है नहीं कि आपको 100 रुपीज मिल रहे हैं उसके बावजूद भी आप बुक नहीं करोगे उसको। अगर आपको मिल रहे हैं 100 रुपीज फिर तो आप उसको बुक करोगे ही ना। तो अगर आप भी बुक नहीं कर रहे तो देयर यू हैव सम डॉक्यूमेंट विद यू कि ऑन द बेसिस ऑफ यू लाइक पार्टी से कॉरेस्पॉन्डेंस रहेगा ना कुछ इस बारे में, क्वालिटी के बारे में कुछ ना कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस रहेगा। राइट बिल्कुल सबको। इवन इन द केस ऑफ बैड डेब्ट्स आल्सो 36(1) में एक डिडक्शन है बैड डेब्ट्स के केस में भी। तो प्रैक्टिकली व्हाट हैपन, जब भी बैड डेब्ट्स की डिडक्शन कोई क्लेम करता है तो असेसिंग ऑफिसर का फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि वेदर यू हैव मेड एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद दैट डेटर, क्या आपने आज तक कोई कॉरेस्पॉन्डेंस भी करी है उस डेटर के साथ। तो ये क्यूमुलेटिव सबको देखा जाएगा कि और कुछ एविडेंस है आपके पास या आपने कॉरेस्पॉन्डेंस करी या कुछ करा, तो उसके बेसिस पे आपको रियलाइज हुआ एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ योर रिवेन्यू कि ये तो मेरे को कलेक्शन होने नहीं वाला है, या तो ये मेरा काम खराब हो गया है या फिर वो पार्टीज ऑफ सच नेचर, तो आप वो पहले दिन से ही उसको बुक नहीं करोगे उस रिवेन्यू। ओके सिस्टम है, सब कुछ ईमेल पे रहता है सब चीजें। लेकिन this will happen only if you are not certain about the 100 rupees. If you are certain about that you think कि आपको 100 रुपए में से 90 तक मिल जाएगा, 80 तक मिल जाएगा, तो फर्स्ट यू विल बुक द रिवेन्यू, देन यू बुक द बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ओके सर ओके। हाँ, ये रिवेन्यू बुक करने के लिए आईसीडीएस है। रिवेन्यू वो कहता है कि आप बुक रिवेन्यू तब करना जब व्हेन यू आर श्योर कि आपको सर्टेन और रीजनेबल सर्टेनिटी है कि ये तो रेगुलर अपना कस्टमर है, मिल जाएगा, इससे पैसा कुछ नहीं। 100 रुपीज के बारे की बात कर रहा है वो। अगर 100 रुपीज में आपको ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत बैड डेब्ट्स हो जाता है तो देन फर्स्ट यू बुक एंड मेक द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, राइट? ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में आई विल समरी ऑफ रेस्ट एंड इन मीनवाइल आप भी उसको एक बार गो थ्रू कर लोगे तो इजीली हमारा 5-10-15 मिनट में हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, राइट? ओके। ओके।